Good evening, everyone. Thanks for joining this session. I, myself, Sanish Kumar Singh, I have achieved All India Rank 8 in Indian Forest Services 2024. And my journey begins, my UPSC journey has begun in 2017 while I was in second year of my college in MTech at IIT Bombay. And from there, first of all, I just wanted to try that whether I can go for studying long hours or not. So for that, I pushed myself to study for almost like 60 days before prelims in my first attempt. Even though I know that I'm not prepared, but I just wanted to push myself to understand whether I can slog for this many hours or not. If I'm not able to do it, I could have went for our so if I would not be able to do it, then I could have went for campus placement in our college, and that could have been a better option. But after studying, I realized that I can do sit for long hours for studying, and that's how I targeted my second attempt in 2018 while in my MTech second year, and that year I cleared prelims. I wrote mains, but I missed the UPSC Civil Services cutoff by 6 marks. So after that, in 2019, I failed prelims by some margin, and in 2020, I started my like after these three attempts, I started my like career in data engineering at Axis Bank. So I thought that I can prepare parallelly with the corporate job, but it was very difficult in the office hours to study because everyone's eyes is on you, and you cannot skip them. So basically it turns out to be that I was not able to prepare along with job. But COVID year was a blessing in disguise where we got work from home opportunity, and we had due to the less commute time spent on less commute, I was able to study for more hours even at home. So but in 2020, that was my fourth attempt at civil services, and I again missed prelims by zero point 0.5 margin. And I felt that this preparation would require a very much, a mental stability, a peace, which can only be achieved once I fulfill my personal responsibility towards my family. If I talk about my family, my father was in Havaldar in Indian Army. He got retired in 2019, and so it was always like to support the family financially. So I started doing job for next 3 years. I actually focused on delivering on my personal goals, like building home for a family or settling them down in city of Lucknow. And once it was all done, I even got married in 2022. And after my all personal goals were achieved, and then in 2023, I again started preparation for my fifth attempt. And in that year, CSAT was quite tougher. So I was preparing along with my job. But it turns out to be that I could clear GS paper by good margin, even for the forest and civil services. But I missed the CSAT marks. So in the end, it was now like the last attempt, and I felt that whether I should like I would not be able to do it along with job. So finally, in December 2023, I quit my job. Just I imagined that before 6 months, तो जैसे 6 महीने पहले जब सिविल सर्विसेज का मतलब डेट है, जैसे 2024 में अगर जून में पेपर था, तो आई थॉट कि 6 महीने पहले मैं जॉब छोड़ दूंगा सो दैट मेरे को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा. तो वो 6 महीनों में फिर मैंने प्रीलिम्स पे बहुत ही अच्छे से फोकस किया. तो इस बार मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर हुआ और सिविल सर्विसेज का कट ऑफ भी क्लियर हुआ. तो इसके बाद मैंने मतलब
जो सिविल सर्विसेज का पेपर सितंबर में था मेंस का, तो पूरा फोकस ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स सिविल सर्विसेज पे दिया, बट वहाँ उतनी सफलता नहीं मिली मुझे। लेकिन फॉरेस्ट के लिए सिविल सर्विस का पेपर देख के मुझे अपना ऑप्शनल जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, वो डिफिकल्ट थोड़ा लगा मुझे, क्योंकि मैं 3 साल के गैप के बाद पढ़ाई कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब उसके बाद जब क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पास ये था कि एक फॉरेस्ट के कुछ सीनियर्स कहा करते थे कि फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम कैन बी योर बेस्ट टिकट टू लवासना। सो वो चीज माइंड में एकदम बैठ गई थी कि वॉट एवर पॉसिबल इन वॉट एवर मैनर, यही 50 डेज है जो फिर से री एनर्जाइज करके अपने को पढ़ना है और वो अचीव करना है। सो आई मेड ऑलमोस्ट लाइक वी हैड 52 डेज, 52 दिन थे लगभग हाथ में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो 52 डेज इन हैंड था, बट ऑलमोस्ट 7 डेज आई टुक अ ब्रेक टू रिफ्रेश माई सेल्फ, और उसके बाद अराउंड 45 डेज का मैंने स्ट्रैटेजी बनाया, जो कि फॉरेस्ट का मैं फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहा था। एंड मेरे पास दो कंप्लीटली नए ऑप्शनल थे, जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। तो इसमें से टफेस्ट पार्ट जो था दैट वाज जियोलॉजी। तो मुझे अपना मैक्सिमम टाइम वहां पे डिवोट करना था। एंड फॉरेस्ट्री वाज आल्सो डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो वहां पर फिर मैंने अपना टाइम लगाया। तो फाइनली उसका फायदा ये हुआ कि आई वाज एबल टू स्कोर गुड इन जियोलॉजी। आई गॉट 260 मार्क्स आउट ऑफ 400, एंड इन फॉरेस्ट्री इट वाज डिसेंट, 210 आउट ऑफ 400. But we will talk about this mains strategy and interview strategy later. I think there has been a lot of demand for what has been my prelims strategy first of all. And in prelims I will break down into GS or CSAT ka, and then we will further focus more on the Indian Forest Services exam and then the interview part. I hope this sounds good. तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई हैव रेफर्ड, व्हिच इज वेरी कॉमन टू जितने भी टॉपर्स हैं, उनके बहुत ही कॉमन ही रहे हैं। फिर भी मैं एक बार रीट्रेट कर देता हूँ सबके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में मैंने मैक्सिमम टाइम एम लक्ष्मीकांत पढ़ा और उसको बहुत ही अच्छे से ना जाने कितनी बारी रिवीजन कर लिया होगा। तो उसके अच्छे से क्लॉजेस और ये सब माइंड में धीरे धीरे याद होने लगते हैं, रिपीटेटिव रिवीजन करते हैं हम लोग। और उसका रेलेवेंट करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कुछ भी जब कोरिलेशन आता है तो वो एक कहीं पे नोट कर लिया। तो मेरी एक आदत थी कि मैं अपने बुक में ही कहीं ना कहीं उसको जाके वो चैप्टर पे लिख लिया करता था, सो दैट जब मैं वापस रिवीजन करूं तो मेरे लिए अच्छा रहे। अगेन हिस्ट्री भी काफी अभी रिसेंट टाइम में हिस्ट्री में जैसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। पहले मॉडर्न के ज्यादा आया करते थे, अब कभी कभार एंशिएंट मेडिवल के भी क्वेश्चंस बढ़ गए। तो एंशिएंट के लिए तो मैंने एंशिएंट और मेडिवल के लिए तो मैंने 12th की हिस्ट्री की किताबें पढ़ी और उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो गैदर किया। एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैंने लूसेंट की जीके का भी काफी अच्छा यूज किया एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर इसको आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लें तो पेपर में उससे काफी बेनिफिट मिलता है लूसेंट जीके में। एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री तो हमेशा से ही मैंने स्पेक्ट्रम का ही मतलब इस्तेमाल किया है, और स्पेक्ट्रम को मल्टीपल टाइम पढ़ पढ़ के द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट और इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री, वो सब चीजें याद होगी। एनवायरमेंट की बात करें तो शंकर आईएएस की मैंने किताब पढ़ी थी, शुरू से उसी को फॉलो किया है। दो वो अपने आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, बट एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाता है अबाउट ऑल द टॉपिक्स इन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। बट अपने को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है करंट अफेयर्स से भी। और रिसेंट टाइम में जो एनिमल रिसेंट टाइम पे जो एनिमल बिहेवियर पे जो क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें अपने को कहीं और भी चीजें थोड़ा सा मतलब अपने को वाइडर इंटरेस्ट रखना पड़ेगा इन सब चीजों में।
और तो जैसे मेरे एक सीनियर ने कहा था कि आप एक डॉक्यूमेंट्री है डेविड एटनबरो की, लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, वहां से कुछ एक चीजें आप जब क्रिटिकली देखते हो, 2 घंटे का डॉक्यूमेंट्री, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो कि एनिमल के बिहेवियर के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करती है। और फिर ज्योग्राफी मेरे को बहुत पसंद था, तो मैंने फिर भी 11th-12th की ज्योग्राफी की बुक्स काफी अच्छे से पढ़ी। और यहाँ मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे मृणाल पटेल सर के वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे एक रतांजिल सोलंकी मैम का ज्योग्राफी कोर्स था, आज से 7-8 साल पहले उन्होंने अपलोड किया था। वो आज भी मुझे लगता है कि बहुत रिलेवेंट है, और उसका काफी सारा कंटेंट। तो उसके मैंने नोट्स आज से 6-7 साल पहले से बनाए हुए थे। जब भी मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं 2 से 3 दिन में उनका वो पूरा नोट्स रिविजन कर लेता हूँ। तो उससे मुझे आज भी हेल्प मिलता है मैपिंग करने में, या फिर वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सेज को जानने में। और मैं जब एटलस को इस्तेमाल करता हूँ तो उन सब चीजों को वहां पे मैं भर के भी रख लेता हूँ। जब भी मैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं अपने एटलस पे वो कंट्रीज का जाके मार्क कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट कहाँ पे फाउंड होता है, या अर्जेंटीना में जैसे लिथियम का है। तो ये सब चीजें जब भी इंफॉर्मेशन मिले वहां पे एक बार के लिए मैप देख लेता हूँ। तो बहुत ही शौक था कि एटलस जब भी मन करता था उठा के पन्ने पलट लिए, तो उससे काफी ज्यादा एक नॉलेज बेस बढ़ जाता था। साइंस एंड टेक तो पूरा लगभग करंट अफेयर्स रिलेटेड रहता है, पर बायोटेक्नोलॉजी जो भी जेनरिक थीम्स है, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस के रिलेटेड, एंड डिफेंस रिलेटेड, ये सब चीजें मतलब पढ़ सकते हैं हम लोग करंट अफेयर के किसी भी मॉड्यूल से, चाहे वो विजन आईएएस का ले लीजिए, चाहे फॉरम आईएएस, कोई भी कोचिंग का एक मटेरियल उठा लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए 11th की एनसीईआरटी मेरे को मेंस के परस्पेक्टिव थोड़ा अच्छा लगता था। मतलब उसमें काफी इलेबोरेटेड चैप्टर्स थे, एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने समरी पढ़ लेता था मैं किसी भी कोचिंग का उठा के। एंड श्रीराम आईएएस के मैं नोट्स पढ़ता था। तो उस पे मैंने ओवर द टाइम जब भी कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला, तो उस चैप्टर के रिलेवेंट चीजें मैं डिटेल्स में वहां पे लिख लेता था जब भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला। और बाकी तो करंट अफेयर्स के लिए मतलब कोई भी बुक अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना ही जरूरी है। और इफ एट ऑल अगर नहीं कर पाते, जैसे मैं भी जॉब करता था, नहीं मुश्किल होता था, तो मैं किसी भी कोचिंग के एंड टू एंड एक मंथली उठा के हर महीने की पढ़ के उसको 4-5 पेजेस में कंपाइल कर लेता था। तो उससे मेरा मतलब रिवीजन फास्टर हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पढ़ूं। तो ये रहा बेसिक बुक लिस्ट के बारे में। और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें प्रीलिम्स की, तो दोनों चीजें अलग है, जीएस और सी सेट का। तो वो भी आई थिंक आप सब लोग इतने ज्यादा पॉडकास्ट सुन चुके होंगे कि सिमिलर ही जाता है। फिर भी बस रीइटरेट कर देता हूँ कि जीएस वगैरह के लिए आप कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी पढ़ना है आपको, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप उठाइए, थोड़ा एरियाज एनालाइज कीजिए पहले, और फिर उन टॉपिक्स पे जाइए और उसको फिर टैकल कीजिए। और उसका भी बस मतलब फोकस एरिया एक बार देख लीजिए। ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन तुरंत के तुरंत बनाना है या बन ही जाएगा। आपको 2 से 3 बार आप लक्ष्मीकांत को रिवाइज कीजिए, फिर आप एक टाइम बाउंड मैनर में पीवाईक्यू को भी उठाइए। कभी कभी आप जैसे 100 क्वेश्चन है पिछले 10 साल के, तो आप उठाइए, देखिए कि उसमें कितना आपसे हो रहा है। अगर आपको 70% हो रहा है, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ऑन ट्रैक है और यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है। और आपसे अगर नहीं हो रहा है, 30-40% ही हो रहा है, तो इसका मतलब कि अपने को और ज्यादा रिविजन करने की जरूरत है, और थोड़ा फोकस करके चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत है, जैसे आर्टिकल्स, नंबर, उनके डिफरेंट प्रोविजंस, तो वो कर सकते हैं। सेम गोज फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। कोई भी आप टॉपिक उठाइए, उसका पीवाईक्यू देखिए, उससे एक एरियाज का आइडिया लग जाएगा, आप ओवरऑल पढ़ाई कर लीजिए, और फिर वापस आके यहाँ चेक कीजिए कि कैसे मतलब आपका ये रह रहा है, मतलब कैसा आपका परफॉर्मेंस रह रहा है पीवाईक्यू पे। और अगर अच्छा है तो थोड़ा सा मतलब आप फिर आगे बढ़िए, नहीं तो अगर उसी को आप एक बार फिर रिवाइज कीजिए। सेम बाकी सब्जेक्ट्स का भी यही अप्रोच आप रख सकते हैं। सी सेट के लिए, चूंकि मैं मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तभी भी 2023 का सी सेट मेरे लिए क्या कहते हैं, फेल हो गया था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत वेकअप कॉल है कि अपने को एफर्ट डालने की जरूरत है। तो एक तो अप्रोच भी चेंज किया। मेरा ये अप्रोच रहता है कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी अपना
स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। और अगर टाइम दिया जाए तो मेरा ये स्ट्रैटेजी होता है कि अगर 25 या 26, अगर 25 26 अगर क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट मैं इंश्योर करता हूँ कि एक आध छोड़ के लगभग सब में टिक मार्क करता हूँ, सो दैट वो मेरे लिए थोड़ा पॉजिटिवली वर्क करे। तो 1 घंटा मोटा मोटी इस पे लगभग चला ही जाता है आरसी में। तो नेक्स्ट का 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट जो भी मिले, उसमें फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन को, तो नॉर्मली टारगेट करता हूँ कि 50 से 55 क्वेश्चन मेरा हिट हो जाए आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, सो दैट मेरा कट ऑफ क्लियरली हो जाए। पर चूंकि इसकी तैयारी करने के लिए थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मतलब पिछले साल तो फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढा, तो काफी सारे कोचिंग है, वो फ्री में उनके कोर्सेज है। फॉर एग्जांपल PW ओनली IS का वेबसाइट पे एक टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं। तो उसमें शॉर्टकट्स भी काफी बताते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस का, एंड मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के, और भी थोड़े लॉजिकल रीजनिंग वाले, तो वो काफी हेल्प करता है। और वो बहुत ही फ्री मॉड्यूल था, तो मेरे को सीखने में बहुत आसानी पड़ी उससे। तो दैट हैज हेल्प मी। एंड मोर देन एवरीथिंग, आपको प्रैक्टिस करना, आपको अगर डर लग रहा है तो 10 कोई भी उठा लीजिए, पीवाईक्यू पहले सॉल्व कर दीजिए। तो पिछले 4 सालों से पीवाईक्यू पे आप देखेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उससे भी एक अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाता है। बिफोर 2020 सी सेट काफी सिंपलर था, तो बट उससे आपको एटलीस्ट थीम मिल जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सबको जो अपने इजी क्वेश्चन है उसको कभी भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपनी जीएस और सी सेट की। एंड नेक्स्ट अगर इसकी बात करें फॉरेस्ट की मेंस स्पेसिफिकली, तो मैं देख रहा हूँ कि किसी ने PSIR का भी, मैं PSIR पे नहीं ज़्यादा कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे स्कोर नहीं आए। तो सोर्स और ये सब, मैं आई थिंक बेटर टू टॉक टू, यस, लिसन टू एनी अदर टॉपर हु हैज स्कोर्ड वेल। सो आई एम सॉरी, PSIR for PSIR I'll not be able to say too much. नेक्स्ट है कि मेंस में, फॉरेस्ट का मेंस अगर आप डिपेंड करता है कि आप सोलली फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास अराउंड 5 मंथ्स का टाइम मिलता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज के बाद फॉरेस्ट का कर रहे हैं, तो हार्डली यू गेट अराउंड 45 to 50 डेज। तो इन दिनों में आपका स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको भरोसा करना पड़ता है खुद पे कि आपका क्लियर हो सकता है। वो रहेगा, क्योंकि आप नोटिस करेंगे हमेशा से ऐसा होता है कि जैसे इस साल का एग्जांपल दूं, तो लमसम 2200 बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होता है फॉरेस्ट के लिए, जो अपियर होने वाले रहते हैं। बट हार्डली आप देखेंगे हर सेंटर में, हर रूम में 6-7 बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपना ऑप्शन को मिस कर देते हैं। उनका लगता है कि शायद 50 दिन में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो नहीं आते पेपर देने। और कई बार कुछ लोगों को लगता है उनका सिविल सर्विसेज अच्छा गया है, तो यहाँ पे उनका कुछ हो जाएगा, तो यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। पर मेरे हिसाब से कि दोनों ही टाइप के वैरायटी के बच्चों को मतलब पेपर दे सकते हैं। और 50 दिन में पॉसिबल है एटलीस्ट एक अच्छा खासा अटेम्प्ट देना, तो वो जरूर कोशिश करनी चाहिए। अब उसकी बात करें तो अब अपने हाथ में सिर्फ 45 दिन है या 50 दिन है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप जैसे जियोलॉजी की बात कर लेते हैं पहले, तो जियोलॉजी में 12 मेजर थीम्स है पूरे चैप्टर के, लाइक स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड पैलेंटियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी। तो ऐसे खूब सारे थीम्स हैं। इसमें से 12 में से कम 7 से 8 ऐसे थीम है जो कि थोड़ा समझने के लिए इजियर है और थोड़ा जनरलिस्टिक वे में है, मतलब साइंटिफिक डोमेन है बट येट थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अपना टारगेट ये है कि पर डे दो थी मतलब पर टू डेज में अपने को 2 थीम देना है। मतलब अगर इफ यू आर पिकिंग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, तो हर टॉपिक को अपने को फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग में 2 दिन का वक्त देना है। तो ऐसे 12 थीम को कंप्लीट करने में अपने को 24 दिन लग जाएगा। सिमिलरली अब आपको, क्योंकि 24 दिन तो आपके चले गए, आपके पास 45 डेज ही हैं, तो आपके नेक्स्ट बचते ही 25-26 दिन है, फिर से 25-26 दिन, 20 ही दिन बचते हैं, 20-21 दिन। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि फिर से आप क्या करो कि 6 दिन के अंदर वापस ट्राई करो कि आप सेकेंड इटरेशन कर पाओ। तो आपको एक दिन में 2-2 थीम पकड़ना पड़ेगा जियोलॉजी का।
और इसमें से जो आपके डिफिकल्ट पार्ट है, आपको नहीं याद हो रहा है, उसको देखिएगा। उस पर अगर क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू से, तो उसमें अपने को एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, उससे एक हेल्प मिलता है। और सिमिलरली तो ऐसे आपने सेकेंड रिवीजन करते करते आपको 30 डेज हो गया, देन थर्ड रिवीजन के लिए आपको हार्डली 4 to 5 डेज मिलता है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें एफर्ट डालिए और 4 से 5 दिनों में उसको रिवाइज करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको पेपर देने में ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। इसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि कई बार हम अगर 35 डेज हमने अगर 45 दिन में से 35 दिन अगर हमने इसी में लगा दिए जियोलॉजी में, तो फॉरेस्ट्री के लिए तो वक्त बचेगा ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट्री का सिलेबस काफी सिंपलर है, क्लोजर टू व्हाट वी स्टडी इन आवर एनवायरमेंट, और जर्नलिस्टिक वे में सिलेबस है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि जियोलॉजी काफी मतलब लर्निंग बेस्ड है, और काफी आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा जियोलॉजी में काफी ज्यादा, तो आपके पास उतना टाइम बचेगा नहीं। फिर भी मैंने ये कोशिश किया था अपने प्रिपरेशन में कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था अक्टूबर में पढ़ना, तो ये था कि जियोलॉजी के मैं एटलीस्ट 5 सिंपलर थीम को पहले फिनिश कर लेता हूँ, सो दैट मेरे पे से प्रेशर ऑफ हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। और एक बार जब थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, आप 10 दिन में मान लीजिए 5 थीम पढ़ लिए, तो इट इज क्लोजर टू लाइक 40% सिलेबस यू हैव एटलीस्ट स्टडीड। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था कि 10 दिन के बाद फॉरेस्ट्री को मैं डेली 2 से 3 घंटा दूंगा। जैसे कभी आप सुबह मान लीजिए 8 से लेके शाम को 6-7 बजे तक पढ़ रहे हैं, बीच में ब्रेक थोड़ा बहुत जो भी खाने का लिया और थोड़ा वॉक कर लिया, तो उसके बीच उसके वहां आपने जियोलॉजी खत्म कर ली, तो शाम को ऐसे 6-7 बजे के बाद जब थोड़ा आपका ऑलरेडी इतना दिमाग लोड हो चुका है जियोलॉजी से, तब फॉरेस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स को आप उठाइए। आप 2-3 घंटा 3 घंटा डेली का कैजुअल रीड भी देंगे, तो आपको कंटेंट फिनिश करने में 10 से 12 दिन लगेगा, अगर आप 3-3 4-4 घंटा डेली का दे रहे हैं तो। सिंगल रीडिंग 10 से 12 दिन में हो सकता है, सेकेंड रीडिंग अगेन वापस 10 दिन में फिर से पढ़ लीजिए, और थर्ड रीडिंग फिर आप सोलली जैसे 4 से 5 दिन सिर्फ 3 से 4 दिन फॉरेस्ट्री को आप दीजिए, और आपका मतलब फॉरेस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं लिखने के कैपेसिटी में आ जाएंगे उसके बाद। तो ये है फॉरेस्ट्री का नोट्स पार्ट पे। कहाँ के नोट्स मैंने रेफर किए, तो एक ये है कि आई थिंक 2021 बैच के एक आईएफएस हैं, वो अपूर्व दीक्षित सर, उनके नोट्स काफी अच्छे थे, और उनके नोट्स से मुझे फॉरेस्ट्री के भी नोट्स मैंने उनके ही फॉलो करे, और जियोलॉजी के नोट्स उनके मैंने फॉलो किए। लेकिन जो टॉपिक समझ नहीं आता था उसको कभी ऑनलाइन ढूंढ लिया या यूट्यूब पे ढूंढ लिया, ये मैंने जरूर कोशिश करी। और एक चीज और भी है कि काफी सारे आप लोग टॉपर्स के देखेंगे फॉरेस्ट्री के, मतलब 40-45 पेज के वो शॉर्ट नोट्स वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। जैसे कुछ लोग अपना स्कैन करके डाल देते हैं, तो मैं मल्टीपल लोगों के पढ़ता रहता था फॉरेस्ट्री, क्योंकि फॉरेस्ट्री मैं जैसे कहूँ तो एक दिन में भी आप उनके 40 पेज के नोट्स पढ़ सकते हैं। तो एक उससे फायदा ये होता था कि कुछ नया कंटेंट है तो दिमाग में बैठ जाता था, या फिर कुछ कहीं लिख के रख लिया उसको, तो वो एक हेल्पफुल होता था। और जहां तक कोचिंग की पार्ट है, हालांकि मैंने कोचिंग जरूर ज्वाइन करी थी, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था मैंने प्लैनेट जियोलॉजी का, जियोलॉजी के लिए। एंड उससे कभी कभार उनके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, तो कम टाइम में चीज़ों को समझने में अच्छा रहता है, और रिपीट मोड में देख सकते हैं, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल था। So this is about geology, forestry. Next, two basic more subjects: general knowledge and general English. जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश का, तो उसमें जीके में मेरे फेयरली अच्छे मार्क्स आए थे इस साल, जैसे 160 आउट ऑफ 300 आया, विच इज प्रिटी डिसेंट। तो इसमें मैंने हार्डली 1 से 2 दिन का एफर्ट डाला था, दैट इज टुवर्ड्स एंड ऑफ द एग्जाम, लाइक स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम, लाइक लास्ट इट वाज ऑन 24 नवंबर, तो 22nd एंड 23rd को मैंने सिर्फ 2 दिन अपने नोट्स रिवाइज किए थे। मतलब रैंडमली जो भी मैंने अपने टाइम पे मेंस के टाइम पढ़ा था, तो उसका मेरे को एक बेनिफिट मिला कि प्रीलिम्स और मेंस की जब प्रिपरेशन अच्छी थी, तो जीके में बहुत ज्यादा एफर्ट डालने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर में आप चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, लाइक उसमें 10 मार्कर्स होते हैं, और
15 मार्कर होते हैं, तो 10 मार्कर में आप 1.5 पेज अच्छे से लिखिए, और जो बाकी स्पेस है, अगर आपको स्कोप मिलता है डायग्राम वगैरह बनाने का, तो आप डायग्राम बना लीजिए। और 15 मार्कर में आप 2 पेज लिख लीजिए, दैट शुड बी सफिशिएंट। और उसको आप अच्छे से पॉइंट वाइज लिखिए, और डिटेल्स, मोस्टली ये फैक्चुअल टाइप का पेपर होता है, इसमें सिविल सर्विसेज इतना एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो दैट हेल्प्स अगर आपने चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करा हुआ है। और इसमें डिफरेंट थीम होते हैं, देखा जाए जीके में तो ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट थीम्स होते हैं। लाइक वन इज फॉर हिस्ट्री का जैसे थीम रहता है, पॉलिटी का रहता है, इकोनॉमी का रहता है, एंड ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहता है, एंड एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी पे एक फोकस थीम रहता है। तो इस टाइप के थीम्स हैं, और आप इसके 10 साल के पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको हिस्ट्री में तो क्लियर कट आपको दिखेगा कि देर इज सम पैटर्न। लाइक अशोका पे, एम्परर अशोका पे बहुत सवाल बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है, कभी समुद्रगुप्ता पे आ जाता है। तो आपको वो जीके में थोड़े थीम्स आइडेंटिफाई करने से हेल्प मिलता है, या ह्यूमन कैपिटल में बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है। तो इस तरह की चीजें करी जा सकती है जनरल नॉलेज के लिए। जनरल इंग्लिश के लिए मेरे बहुत ही अच्छे स्कोर तो नहीं थे, बट बेसिकली मेजर चीजें हैं कि इसमें आपका 100 मार्क्स का ऐसे रहता है आउट ऑफ 300 मार्क्स, एंड 25 मार्क्स का रिपोर्ट राइटिंग होता है, 25 मार्क्स का आपको एडिटर को लेटर लिखने का या वैसा कुछ होता है, लेटर लिखने का, एंड 50 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग होता है, 50 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एंड 50 मार्क्स का ग्रामर होता है। इसमें अगर 5 महीने प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इन जनरल भी आप प्रिपरेशन फॉरेस्ट की अभी से भी कर रहे हैं आफ्टर द प्रीलिम्स या पहले भी, तो ग्रामर सेक्शन पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें श्योर शॉर्ट मार्क्स होता है। मतलब अगर आपने 50 का करेक्ट किया है तो हार्डली नंबर कम होने का मार्जिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाकियों में फिर भी थोड़ा सब्जेक्टिविटी है। यहाँ पे आपने ग्रामर को अपना अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट करा तो इजी रहता है करना। तो बाकी लेटर टू एडिटर और हाँ, लेटर टू एडिटर और रिपोर्ट राइटिंग मतलब इजीली पॉसिबल है करना। मतलब आप बस एक दिन का टाइम दीजिए और थीम देख लीजिए, कैसे आपको किस तरह से सब्जेक्ट लाइन लिखना है, कैसे टू लिखना है, और कैसे कंटेंट को क्रिस्प वे में लिखना है। तो दैट शुड बी फेयर एनफ टू डू दैट। तो जो लोग 50 डेज की प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास एक्चुअली इंग्लिश को करने का हार्डली एक से 2 दिन होता है, जिसमें वो सिविल सर्विसेज के अपने ऐसे दिए हुए लिखे हुए जो रहते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो कंटेंट बेटर हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डेली आधा घंटा का थोड़ा बहुत ग्रामर उठा लीजिए, जब भी आपको कैजुअली या फैमिली मेंबर से डिस्कस कर लीजिए, तो दैट रियली हेल्प्स। तो ये है मोटा मोटी मेंस की स्ट्रेटेजी। और फिर नेक्स्ट पार्ट होता है कि अपना इंटरव्यू का कैसे करना है। तो इंटरव्यू तो मतलब आप हार्डली 2 to 3 आवर्स भी अगर डेली का आप दे देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का इंटरव्यू और रिजल्ट्स में कम से कम 3.5 4 मंथ्स का टाइम होता है। तो 2 से 3 घंटा या 1 से 2 घंटा भी आपने दे दिया डेली का, तो वो हेल्प करता है। इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट काफी ज्यादा ऑनलाइन मिल जाती है, एंड उस ट्रांसक्रिप्ट को आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको एनालाइज कीजिए। एक पार्ट तो वो है। दूसरा है कि अपने फ्रेंड सर्कल बनाइए जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं इनको। तो वो एक काफी हेल्प मिलता है। मतलब आप कोई भी 2 ट्रांसक्रिप्ट, एक दिन को एक ट्रांसक्रिप्ट उठा लीजिए, आप अपने फ्रेंड को पूछिए पूरे क्वेश्चंस, अगले दिन वो आपसे पूछ ले, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन आपका और बेटर होता है, एंड यस टू द पॉइंट बात करने की हैबिट होती है, तो वो एक हेल्प करता है। थर्ड पार्ट इज कि आपको मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए नहीं देने चाहिए। मेरे हिसाब से तो देने से बेटर होता है, कम से कम अपने को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिचुएशन में बोलने की हैबिट होती है, तो इट हेल्प्स। बट वी शुड ऑल्सो बी कॉशियस ऑफ वेरी नेगेटिव फीडबैक। अगर बहुत ही नेगेटिव फीडबैक लग रहा है और आपको डिमोरलाइज लग रहा है, तो आप उस टाइप के कोचिंग्स में मत जाइए देने मॉक। वो भी एक मतलब आप 4 से 5 मॉक दे दिया, आप यू कैन फील कंफर्टेबल, और नॉट नेसेसरली कि हमें 15 20 50 मॉक्स देने हैं। तो वो आप बच सकते हैं उससे। मतलब आप अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, आप प्रेजेंट कीजिए, और आपको लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे आपको बिहेवियर ही चेंज करने की बात हो रही है, तो फिर वो चेंज हो नहीं सकता 4 महीने में या 2 महीने में, तो उसको आप फिर स्किप कीजिए। आप अपने पे निडर रहिए और कि भाई हमने जितना प्रिपरेशन करा है वो बढ़िया है।
क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो ये फुल मतलब ओवरऑल मतलब साइकिल ऑफ प्रिपरेशन में बता दिया है। एंड मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, मैं ऊपर से एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूँ आप लोगों के। आफ्टर 12th यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें प्लीज? मेरे हिसाब से तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का स्ट्रीम, अगर वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है तो आप उसी में एफर्ट डालिए अच्छे से, और मतलब चूज कीजिए आपको किस स्ट्रीम में इंटरेस्ट आ रहा है, उस स्ट्रीम को फॉलो कीजिए। और अगर फॉरेस्ट सर्विसेज टाइप तरफ आना है या फिर सिविल सर्विसेज साइड आना है, तो अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन के टॉपिक को, तो आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाइए और उसको ऑप्शनल बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 12th के बाद आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर लीजिए, और फिर उसके बाद आपको उसके बाद पैरेलली अगर आप रहता है तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स और इस टाइप की चीजें आप पढ़ना चालू कर सकते हैं। बट जिस टाइम पे जो चीज आप कर रहे हैं उस पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है क्वेश्चन, मोटिवेशन कहाँ से मिला ये करने को? तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दादाजी एक फार्मर है, मेरे फादर एक इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, और सेम मेरे ब्रदर भी इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं। और जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इन सबका योगदान हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम पढ़े लिखे हैं और अच्छे कॉलेज से पढ़ने का और अच्छी जगह से पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो व्हाई नॉट वी शुड गो टू सर्व आवर नेशन। सो दैट वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू माय नेशन। सो अब मैंने 6 साल वर्क भी किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी आपको एफिशिएंट और ये सब वर्क करने का मौका मिलता है, पर आपकी पहचान एक आपके डिपार्टमेंट और आपके काम तक सीमित रहती है। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विसेज में आप अगर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो आपकी पहचान एक बहुत ही बड़े तबके के लोगों तक पहुंचता है, और आपको एक काम करने का मौका मिलता है, वैरायटी ऑफ वर्क, जो आपको शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में एटलीस्ट आपको इतने अर्ली एज पे नहीं मिल पाता है। तो मेरी मोटिवेशन वहीं से मिलता है कि कैसे हम अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें, जिससे मतलब बेहतर कंट्रीब्यूशन कर पाए हम समाज के लिए। प्रीलिम स्ट्रैटेजी की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, सीसाइड स्ट्रैटेजी की बात कर ली है, और जिन को अगर लगता है कि और डिटेल्ड में चाहिए तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं कभी भी। मैं अपना अभी तक मैंने वैसे कोई टेलीग्राम हैंडल क्रिएट नहीं करा है, बट अगर ऐसा नीड पड़ा तो आई विल शेयर दैट। एक सवाल है, एनसीईआरटी जरूरी है या कोचिंग से करें? मेरे ख्याल से सेल्फ रीडिंग की हैबिट इस्टेब्लिश अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपने कभी भी मैंने कोचिंग नहीं लिया है कभी भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, ओनली फॉर, क्योंकि 50 डेज का क्रंच टाइम था तो मैंने जियोलॉजी की कोचिंग लेने की ट्राई करी। हालांकि वो भी कंप्लीट नहीं कर सकते आप अगर पूरे दिन सिर्फ कोचिंग की चीज़ें पढ़े तो आपको कंटेंट भी डिसाइड करना जरूरी है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। पर बिना कोचिंग के भी डेफिनेटली पढ़ा जा सकता है, जस्ट दैट कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन में वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका, और आपको दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट है जो बहुत लोग मिस करते हैं, कि फिजिकली आपको फिट होना जरूरी है, और तभी आप इतने लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिसीज और विदाउट एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल इन मेरे केस में मेरा फिक्स शेड्यूल है, लास्ट 1 साल जब भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ तो मेरा एक फिक्स शेड्यूल होता है कि मेरे को आधा आधा घंटा से 40 मिनट मुझे वर्कआउट करना है, चाहे वो मैं जॉगिंग कर लूँ या फिर एक्सरसाइज कर लूँ, बट मुझे करना ही करना है। इससे मेरा नेक्स्ट 10 to 12 आवर्स सेटल हो जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका पोस्चर वगैरह बेटर रहता है, तो यू डोंट गेट पेन मोर ऑफन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन सेट करेंगे 10 to 12 आवर्स का, आप रेजीम एक फॉलो कीजिए पढ़ने का, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेसिटी। आपको लगता है कि आप स्लो लर्नर है तो ज़्यादा टाइम दीजिए, आपको लगता है फास्ट लर्नर है तो आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। बट
ये स्लो और फास्ट का कैसे करना है, वो आपका खुद का एक रियलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए कि आपको कितना वक्त किधर किधर देना है। एक क्वेश्चन है, टॉपर्स अलग क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है, बिकॉज लगभग बुक लिस्ट सब एस्पिरेंट की सेम ही होती है। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग तो मुझे लगता है कि मोर ऑफ कि आप कितना परसिवर कर पा रहे हो एडवर्सिटी में भी। आपको लग रहा है कि भाई दोस्त की शादी है और कुछ भी है, मतलब घर में फंक्शन है, और आपको मतलब आप उससे कितना आप डिसेक्ट भी हो सकते हो। मतलब जरूरत पड़ने पे आपको लगना चाहिए कि भाई हम इससे दूर रह के हमारा हमको क्या करना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो गोल आपका एकदम फिक्स होना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि मतलब मेरे ख्याल से टॉपर्स हर कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट दैट कि आप में अगर डिसिप्लिन और रेजिम आप फॉलो करें और आपके मोटिवेशन को रखें कि क्यों आप ये करना चाहते थे इन द फर्स्ट प्लेस, देन ओनली यू कैन गो फॉर सो लॉन्ग इन योर लाइफ किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। ऑप्शनल स्ट्रेटेजी की मैंने बात कर ली है, मोस्टली जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री की। नीचे जियोलॉजी की कोचिंग कहाँ से करे। आई थिंक मैंने मतलब मुझे तो एक ही पता था शॉर्ट टाइम में, तो मैंने वहीं से करी। वो भी मैंने हाफ वे ही फॉलो किया, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने खुद ही पढ़ाई करी फिर अपूर्व दीक्षित सर के नोट से। सर, इज इट पॉसिबल टू क्लियर यूपीएससी 2026 इफ समवन स्टार्ट्स नाउ? ये बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब अभी तो पूरा एक साल है आपके पास मतलब पढ़ने के लिए, और एक साल में आप अपना प्लान बनाइए कि आपको मंथ वाइज में आपके पहले सब जो बुक लिस्ट बताई है उसमें आप देखिए कैसे आप कवर कर सकते हैं, कितने दिन में कवर कर सकते हैं। जैसे मेरा एक सिंपल सा फंडा, जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं सेल्फ लर्नर था, तो मैं सोचता था कि इसमें अगर 600 पन्ने हैं और मेरे को डेली 50 पेज पढ़ने की कैपेसिटी है, तो मुझे 600 पन्ने पढ़ने में 12 दिन लग सकता है। तो मैं 12 दिन उसको पढ़ता था, सिर्फ उसी को पढ़ता रहता था। जब एक बार कंप्लीट हो गया सिंगल रीडिंग, फिर मुझे समझ में आता था कि मुझे कौन से पार्ट को फास्ट पढ़ सकता हूँ, कौन से पार्ट को मुझे और टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैं उस हिसाब से 12 दिन में से पढ़ा, तो नेक्स्ट 8 डेज में मैं सेकेंड रिविजन करूंगा, तो मेरे 20 दिन चले गए यहाँ पे। फिर अगले 5 दिन में वापस का थर्ड रिविजन करूंगा। तो मैं ऐसे टाइम को आधा आधा करते जाता था कि 12 दिन दे दिए, तो अगले बार मैं 6 दिन में कंप्लीट करूंगा, उसके अगले बार मैं 3 से 4 दिन में कंप्लीट करूंगा। तो 3 रीडिंग मैं देता था ताकि थोड़ा मेरे को सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ये किसी भी मतलब कभी हिस्ट्री पढ़ना है, कभी जैसे लक्ष्मीकांत का ही पढ़ना है, पॉलिटी का, तो ये सब चीजें करी जा सकती है। तो यस, पॉसिबल है। एक साल में तो बिल्कुल मतलब पूरा ही पॉसिबिलिटी का आप क्लियर कर सकते हैं। जस्ट दैट कि आप अपना रेगुलर टाइमलाइन शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, सो दैट आपके उस एक साल में कोई भी दिन मिस नहीं हो कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप संडे बेसिकली एक ब्रेक ले सकते हैं अगर आप 6 डेज बहुत हाई इंटेंसिटी पढ़ाई कर रहे हैं तो। फॉर जियोलॉजी, हाउ डू यू टेकल पेपर 1 पार्ट बी? ओके, and paper 2 part A. I am finding difficulty in paleontology, stratigraphy, and petrology. No doubt these topics are really huge and difficult in itself, but there are certain easier parts in these topics, like so basically whenever the complete topic is difficult, you have to find such pockets where things are very easier, or at least with less effort you can capitalize on them. So for a specific to this question, for example, if you take paleontology, so paleontology, I would say just study for 2 days, 2 days with like 1 day gift to just skim through all the pages in paleontology notes. And then the next day, what you can do, focus on the area where it is easier. Like for example, microfossils are easier. Microfossils, you can cover different dimensions. And sometimes it happens that one question comes from that area. Another, you can go for equidae, like we have horses, elephant, and human. Out of these three, at least one question most probably comes, though this year it has not come. But in general, if you see the trend, so these are the easier topics that you pick, those topics which are more prominent
and it features regularly in our PYQ, and you can go for it. And yes, similarly, I think other topics of paleontology like bivalve and I'm forgetting diatoms, maybe not diatoms, but I'm forgetting the topics. But just pick easier things and complete it, so that at least if something comes out from there, you can do it. And also remember that in optional there will always choice of questions. So at times it is possible that you have to leave some question because you know other questions better. So in that way you can take a matlab a balanced approach कि whatever possible just do it in a short term. And if you are going for a you are a 5 month type प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट कि आपको 5 महीना टाइम है, तब तो आप उसको अच्छे से थोड़ा शॉर्ट नोट बनाइए, उसको थोड़ा सा रट्टा मारने की भी कोशिश करना पड़ता है जियोलॉजी में, तो वो हेल्प करता है। उसके लिए आप निमोनिक्स वगैरह बना लीजिए और उसको 4 5 6 बार 8 बार आप पढ़ते रहिए, या अपने स्क्रीन के सामने मतलब अपने नोट पैड में लेके आप चिपका दीजिए। उससे हेल्प करता है कि आप जब भी आप अपने स्टडी टेबल के पास बैठे हुए हैं, जस्ट उसके बाद ग्लांस कर लीजिए तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें याद होने लगती है। तो इट इज़ मोर ऑफ कि कैसे आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली गोज फॉर पेपर 2 पार्ट ए, जहाँ पेट्रोलॉजी है। पेट्रोलॉजी डिफिकल्ट टॉपिक है, जहाँ पे मिनरल्स आर रियली डिफिकल्ट, उनको याद कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। बट आई वुड से इन माई केस मैंने पेट्रोलॉजी के ट्राई किया याद करने का, पर मुझे एंड तक भी याद नहीं हुआ। बट एक बेसिक आइडिया होता है कि जो अपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको कैसे आप फिट इन कर सकते हैं। कोई मिनरल आ रहा है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रैंडमली भी चलता है, नॉट गारंटीड, बट एटलीस्ट दिस इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल। आप छोड़ के पेपर आ नहीं सकते, तो बेटर है कि 2 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे बाय रेफ्रिजरेंस की बात हो रही है या फिर एक्सिस की बात हो रही है, ऑप्टिकल एक्सिस की, तो वो बाय एक्शियल है, यूनी एक्शियल है, एनाइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक है। बेसिक फीचर्स आप किसी भी मिनरल्स का आइडेंटिफाई करके लिखिए, और जितना आता है जरूर उसको लिख के आइए, वो इंपॉर्टेंट है। जीएस मेन सिलेबस कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, बुक कौन से रीड करूं? जीएस मेन सिलेबस कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, बुक कौन सी रीड करें? ये बहुत ही वैसे वास्ट टॉपिक है, मतलब डिपेंड्स कि आपको कौन सा एक्चुअल सब्जेक्ट का पढ़ना है। और मोरेवर अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के एक पैरेलल अगर प्रिपरेशन रखते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज लिखिए कोई भी कोचिंग का लेके। जब आप 17 18 टेस्ट सीरीज लिखते हैं, 12 13 लिखते हैं, तो आपको धीरे धीरे आपको कंटेंट आपके अंदर बहुत कुछ है, आपको याद कोशिश मतलब याद आपको आएगा। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, उसको आप रेगुलरली लिखिए, तो आपको धीरे धीरे सब आइडिया लगने लगता है। और जहां तक बुक लिस्ट की बात है, प्रीलिम्स का जो हमने डिस्कस किया वो तो आपकी कॉमन बुक लिस्ट है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में काफी सारे नए टॉपिक जुड़ जाते हैं, जैसे GS1 की बात करें हम लोग, तो उसमें आपका सोसाइटी वाला एक टॉपिक आपका नया आता है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ये वाला आता है। इसके अलावा तो बाकी ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के कॉमन है। एंड एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने ज्यादा सवाल आते ही नहीं है। तो आप किसी भी चीज का, जैसे मैंने तो एक उत्कर्ष द्विवेदी सर है, उनके ब्लॉग से ही पढ़ लिया था, उनके कंपाइलेशन को वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया लग गया था। और रिसेंट टाइम में जब लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी को भी यूज कर लिया कि वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे मेजर थीम्स पढ़ एक्सट्रैक्ट करके उनके 5 6 बुलेट पॉइंट्स बस लिख के रख लिया, सो दैट कुछ आएगा तो उससे रिलेटेड लिख देंगे। सोसाइटी के लिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स हैं, किसी का भी 40 50 पेजेस का नोट्स है, जो आपको कंप्लीट करने में हार्डली 1 से 2 दिन लगता है। आप रीड कर लीजिए 2 से 3 बार, और आप जनरलिस्टिक वे में भी लिख सकते हैं। मतलब अभी तो आप रिसेंट अगर जीएस के पेपर्स देखेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन जनरल है, जहाँ पे नोट्स का भी मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि सोसाइटी के क्वेश्चन डायरेक्ट किसी नोट से आ रहे हैं। वहां पे आपको जनरल नॉलेज और अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड से ही लिखना है। और आज के टाइम में सिविल सर्विसेज का मैक्सिमम मेंस का पेपर काफी एनालिटिकल इन अप्रोच है, तो आप अपने फैक्चुअल डेटा को करेक्ट रखिए, फैक्ट्स को काफी से रिवाइज कीजिए, और बेसिक्स पे वर्क करेंगे तो वो चीजों को एनालाइज करके एक अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो जीएस में करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, उसके लिए
मतलब मैं तो मेंस से 65 जिस भी सब्जेक्ट का मुझे लगता था मैं उनका उठा के ऐसे ही रैंडमली रीड कर लेता था, मतलब उसके लिए कोई कोचिंग अलग से लेने की मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी। मतलब सेम आपका क्वेश्चन है सोशल जस्टिस का, इस इन सब पे है, मतलब ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं। जस्ट देखिए कि आपका कंटेंट पीवाईक्यू उठाइए, उसमें से देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एड्रेस करना है। और या तो अभी के टाइम पे तो आप मतलब अच्छे से यूज कीजिए चैट जीपीटी का, वहां भी पूछ लीजिए वैसे क्वेश्चंस, तो आपको एक्चुअली वहां पे आपको मिल जाएगा कैसे क्या कंटेंट आपको इवॉल्व करके लिखना है। और नहीं तो किसी भी कोचिंग का 40-50 पेज का नोट्स मुश्किल से वो रहता है, उठा लीजिए सोशल जस्टिस का। आपको बहुत ही इलेबोरेट पढ़ने का जरूरत नहीं है। मतलब इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट एजुकेशन, तो बेसिक फैक्टर ऑफ द एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन के क्या इल्स है, क्या सोल्यूशंस हैं, तो इस टाइप का चीजें आप कवर कर सकते हैं कहीं से भी। आपको उसके लिए अलग से कोई बुकलेट लेने की जरूरत नहीं है, फॉर इन सोशल जस्टिस एटलीस्ट। यूट्यूब से प्रिपेयर करना सही रहेगा। दैट डिपेंड्स क्या कर रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यूट्यूब से पढ़ पढ़ के, तो बिल्कुल नहीं, मतलब आई वुड से नो। मैंने पिछले 1 साल में जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने डब्बा फोन ले लिया था, क्योंकि यूट्यूब से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। तो मेरे पास कोई कंटेंट था कंप्लीट, तो फिर मैं सिर्फ कंटेंट पे पढ़ने पे और टाइम पे फोकस करता था, तो मैंने डब्बे फोन से काम चलाया। उसका नंबर सिर्फ 2-3 लोगों को दो, ताकि बिल्कुल आपको डिस्टर्बेंस ही नहीं हो। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, तो आप यूट्यूब बिल्कुल मत यूज कीजिए, छोड़ दीजिए 1 साल। सर आई एम फ्रॉम एक जन का सवाल है कि मैं अब तक सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन अब मुझे कोचिंग को ज्वाइन करने का मन है, और शुड आई ज्वाइन और नॉट। अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी करके खुद से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, किसी गाइडेंस से आपको हेल्प मिल सकता है, तो वो आपका पर्सनल कॉल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टॉपर्स ज्वाइन करते भी हैं। बट अगर आपको लगता है वो 80-90% चीज़ों को कवर कर चुके हैं, आप खुद ही याद कर सकते हैं, समझ समझ में आ रहा है, तो शायद आप ना भी ज्वाइन करें। और डिपेंडिंग, कई बार होता है कोचिंग की फीस ज़्यादा होती है, तो आपकी कितनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसको भी आप माइंड में रख सकते हैं। तो क्युमुलेटिवली आप इन सब चीज़ों को मिला के आपका डिसीजन वो पर्सनल है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं। मेरे ख्याल से अगर आपने 80-90% कवर किया है, तो आपको शायद कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। रादर आप राइटिंग पे प्रैक्टिस कीजिए, टॉपर्स कॉपीज पढ़िए, आप देखिए कि कैसा क्या आप वैसा कंटेंट खुद लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मेंस के नोट्स कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन को मैं एड्रेस करता हूँ एक बार बाद में। मेंस नोट्स रीडिंग के साथ आंसर भी लिखते थे क्या, ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। बट मतलब फॉरेस्ट्री, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का तो मुझे एक्चुअली 45 डेज में एक भी पेपर लिखने का टाइम नहीं मिला। इट वाज जस्ट प्रॉबेबली सिविल सर्विसेज से काफ़ी प्रैक्टिस पेपर लिखे थे, तो उसका एक इम्पैक्ट रहा होगा, मतलब राइटिंग में। सर ऑनलाइन कोचिंग सही रहेगा या फिर ऑफलाइन? एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग बाय माई सेल्फ विदाउट कोचिंग। मतलब मैंने कोचिंग नहीं लिया, तो आई वुड नॉट बी वेरी राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। As of topper mark sheet GS3 economy marks as very less compared to other papers. Please tell best strategy for GS3. I would say that like I have also followed the basic books only. Like for economy, economic survey I used to read. Shriram IS notes I used to read, and for environment even my basic books like Shankar IS I used to read, and I think the Mrunal sir's compilation on the other part like PDS and those things were good. And even in recent time, I saw Sarthi IS notes. I found it better. At least it was a crisp and well organized at one place, so it had helped me. But still, I would say that I would not like to guide directly on this, since you can listen to other toppers who have actually scored very well in this subjects. And yes, so that would be more helpful rather than me telling what to do.
So someone has asked that I graduated during COVID and don't have any medals, achievement, or sports participation, only hobbies for DAF. How this affect my interview? I think it doesn't matter much, because if I say from my own experience, nothing was asked from my medal, achievement, or sports participation. My interview was mostly on, not even on the DAF. It was more on my college. It was on my college. It was where I have stayed during my college days, and on different aspects. So it doesn't really matter. Ki if you don't have any medals, it's okay. You don't have to be a person who possesses a medal and then only you can clear an interview. At whatever stage of life you're awakened that I want to do this, go do this. It doesn't matter at all. So if it's good if you have done it, but if not, don't be scared. Just face it. There is no problem at all. Mains approach I already talked about. IFS और CSC, IFS और CSC की तैयारी साथ में कैसे करें? One thing is like it's a good part ki CSE ends in month of September. This would be end in month of August. But still, the I think IFS exam, I think I'm not sure, but this year is close to October end or maybe November first second week. So you have get ample amount of time to cover both the CSE and the IFS. Like I have cleared after studying just for 45 days for IFS after my civil services exam. I'm sure that if you can put more extra effort and align your time and like do some more hard work for another 50 days, you will definitely get into the list. IFS का प्रमोशन कैसा होता है, ये आई थिंक मैं नेक्स्ट ईयर आपको बताने के लिए पॉसिबल रहेगा. अभी मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं है. क्वेश्चन की जॉब के साथ तैयारी कैसे करें? अगर आपका जॉब वर्क फ्रॉम होम है तो आपको टाइम मिलता है, काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है. तो आप अपना बीच बीच के ब्रेक्स में भी, जैसे लंच ब्रेक है, आप घर पे भी ब्रेक ले रहे हैं, आप 1 घंटे में पढ़ लीजिए. सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, और रात का जैसे शाम को अगर आप इंडियन कंपनीज में वर्क करते हैं तो 6-7 बजे के बाद आपके पास एटलीस्ट 3 घंटे का टाइम होता है. तो अगर आप 5 से 6 घंटा डेली का निकाल रहे हैं और फिर वीकेंड पे आप ऑलमोस्ट डिवोट कीजिए फिर 10-11 घंटा, तो जाके आप पॉसिबल है, मतलब आप कर सकते हैं. मतलब मेन टाइम मैनेजमेंट ही है. और कभी भी याद रखना है कि जब आपका कम टाइम होता है तो आपका आउटपुट ऑलवेज बेटर होगा, क्योंकि यू विल रश टू कंप्लीट योर थिंग्स. तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर आप 1 साल भी पढ़ रहे हैं तो पुट अ टाइमलाइन टू द कंटेंट दैट यू वांट टू कवर. आप अगर फ्री विलिंग कि जब मर्जी जब पढ़ लिया और जब कर लिया, तो वैसे आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे कुछ भी. तो कई बार क्रंच टाइम हेल्प्स टू आपको प्रिपेयर करने के लिए भी. हाउ टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स रियली गुड क्वेश्चन. कंसिस्टेंसी मीन्स अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको करना ही करना है, तो आपको पता है कि ये हार्ड वे यही है कि आपको उतना टाइम दे के पढ़ना है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लगे रहेंगे. तो कंसिस्टेंसी, मतलब मेरे केस में तो मैं अपने बोर्ड पे लिख देता था कि मेरा ये गोल है कि ठीक है, टॉप 10 रैंक चाहिए. या फिर मैं अपनी मदर की इमेज रखता था, क्योंकि मेरी मदर बहुत मुझे इंस्पायर करती थी कि मेहनत करो, लगे रहो. जैसे वो अपने भाषा में बोलती थी कि अगर आम के पेड़ पे आप जब तक झटारा नहीं मारोगे तो आपको आम कैसे मिलेगा. तो भाई आपको ये है कि आपको मोटिवेशन रहना ज़रूरी है, और आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो ऑलवेज आप कंसिस्टेंट रहेंगे. तो और आप जो भी गोल्स बनाते हैं आप उसको अचीवेबल बनाइए. चाहे आपको यूपीएससी क्लियर करना है 2025 में करना है, 2025 का गोल अचीवेबल होना चाहिए. 26 में करना है तो छोटे छोटे प्लान्स में उसको बांटिए, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे. जब आप स्मॉल टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक हैप्पीनेस मिलता है कि चलिए आज का मैंने काम पूरा कर लिया है, इस महीने का टास्क हो गया. तो उससे आपका कंसिस्टेंसी और आपका पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है. मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? मॉक इंटरव्यू में
तो यूपीएससी का इंटरव्यू तो वाकई वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स और काम माहौल रहता है। कुछ ऐसा आपको टेंशन जैसा फील ही नहीं कराते हैं आपको मेंबर्स। मे बी वो इवैल्यूएट करते हैं बट आपको आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने देते। लेकिन मॉक इंटरव्यूज में कई बार मुझे लगता है को अननेसेसरी काफी ज्यादा मॉक प्रेशर भी बनाया जाता है कि एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसी पे लगे हुए हैं, और आपको कई बार ग्रिल भी किया जाता है। कई बार आपके बिहेवियर और एक्शंस को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली नोटिस करने का ट्राई करते हैं कि आपने मतलब आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं है तो आपने एंटर करते ये नहीं बोला वो नहीं बोला, तो कई बार वो एक एक्सपीरियंस रहता है। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें से आपको बेटर करती है क्योंकि दैट बिकम्स अ नॉर्मल, मतलब 5-6 आप जब मॉक्स दे तो आपको एक रूटीन हो जाता है कि एंटर करते ही हमको विश करना है, सबको ग्रीट करना है, निकलते समय आपको थैंक यू बोलना है काफ़ी अच्छे से। तो वो सब बेसिक चीज़ें डेफ़िनेटली मॉक हेल्प करता है अपने को। और अच्छी बात ये है मॉक्स की कि आपके डैफ रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चनेयर बिल्ड हो जाता है। तो आपको एरियाज़ धीरे-धीरे मालूम चल जाता है किस एरिया से क्वेश्चन्स पूछ रहा है और मैं कहाँ कॉन्फिडेंट हूँ, कहाँ नहीं हूँ, तो उन गैप्स को आप फिल कर सकते हैं। बट एक्चुअल इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल होता है और मेंबर्स आर रियली रियली गुड। सो आप वो रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब रिलैक्सफुली वो काम कर सकते हैं। ओके, आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे थे? आई वुड से 50% डैफ रिलेटेड थे, 50% पूरा मतलब जनरल डिस्कशन ही फील हो रहा था। जैसे मैंने आईआईटी से पढ़ाई करी तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए कि क्यों आईआईटीएंस लोग लास्ट 50-60 साल से आईआईटीज का एग्जिस्टेंस है पर इंडिया में कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो वो बहुत एक अपना एक जनरल टॉपिक है क्यों हम लोग नहीं अचीव कर पा रहे हैं। फिर और भी कुछ है कि इंडिया चाइना का ग्रोथ मॉडल का कंपैरिजन आ गया जैसे मेरे इंटरव्यू में, कि कैसे वो हमसे आगे निकल गए जब 1990s तक सिमिलर थे और आज हम काफ़ी डिफरेंट पाथ पे हैं। और फिर ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे फॉरेस्ट्री में कि लिडार क्या है। एंड बहुत ही ऐसे कल्चरल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे मैं एनआईटी सूरत से भी पढ़ा हूँ तो मुझे ऐसा पूछ लेंगे कि आपको सूरत में आप जैसे पढ़े हैं बाकी जगहों में आपको क्या डिफरेंस फील होता है गुजरात में या यूपी में, कल्चरली क्या आपको फील होता है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। तो बी अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट। आई थिंक दैट मेक्स एन गुड इंटरव्यू। Which source should I refer to practice geography, economics, and environment? तो ज्योग्राफी तो 11th एंड 12th की बुक्स इज एनफ, बट आई टोल्ड यू आई थिंक ऑलरेडी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन दैट आई फॉलोड मृणाल सर के वेबसाइट पे, आई थिंक यूट्यूब चैनल पे देर इज वेरी ओल्ड वीडियो ऑफ रतांजलि सोलंकी मैम एंड शी हैज टॉट रियली वेल एंड काफ़ी अच्छे उनके नोट्स थे। तो ज्योग्राफी तो मैं वहाँ से मैंने बहुत प्रैक्टिस करा है, और एटलस मेरा मतलब एटलस मुझे करने का शौक था तो मैं देखता रहता था कंटिन्यूसली। इकोनॉमिक्स के लिए मतलब मैंने तो श्रीराम आईएएस का बहुत पहले फॉलो किया, दो वो कंटेंट थोड़ा सा अब थोड़ा धीरे धीरे इरेलीवेंट हो गया, अपडेट करना मुश्किल होता है। बट बेसिक्स के लिए 12th का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक अच्छी है। और मेनली आप देखें इकोनॉमिक्स का कभी भी आप पीवाईक्यू देखें, इट्स वेरी जनरल क्वेश्चंस, तो आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। तो वो एक अच्छा मतलब वैसे कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस भी और पढ़ाई भी उस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। करंट अफेयर से काफी रहता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, तो आप किसी भी विजन का या फिर फॉरम का किसी भी कोचिंग का आप अपना इकोनॉमी का एक मॉडल उठा के पढ़ लीजिए या मंथली का वो सेक्शन पढ़ लीजिए। सेम गोज फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बुक्स तो मैंने बता दी ऑलरेडी शंकर आईएस की, बट डेफिनेटली आज प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चंस बहुत ही आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे रहते हैं, थोड़ा सा आपको अवेयर कितना आप एनवायरमेंट के बारे में। तो मैं तो डिफरेंट सोर्सेज से जाके भी मतलब पढ़ने लगता था कि कहीं पे कुछ रैंडम मिल जाए, या यूट्यूब पे मे बी 5 डिफरेंट कोचिंग के लोगों ने एनवायरमेंट कुछ अगर यूनिक कंटेंट बनाया तो जाके देख लेता था कभी अपने फ्री टाइम में। सर आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। एक सेकेंड सर, आई डू बीएससी रेगुलर और नॉट फॉर यूपीएससी। I think you can go for depending on your choice, but BSc regular, if your college is teaching faculties are good, definitely take the benefit of BSc regular. And it also, so don't take college preparation as only the only thing in your life after 12th. You have to enjoy your college life.
You have to talk to your friends. It helps you in building a personality. So college is a very essential part, and once you do it regularly, it it helps in bettering your communication skills. और भी मतलब आपका इंटरडिसिप्लिन नॉलेज बढ़ता है, और मतलब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, कोई काफी सारे क्लब्स होते हैं, तो आप डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को परस्यू कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कॉलेज का इंपॉर्टेंस तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्रिटिकल थिंकिंग ये सब चीजें कॉलेज से आता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप खुद ही कुछ सर्च करते हो, या फिर कभी लैब्स में आप जाते हैं, अपने पीएचडी कैंडिडेट्स को आप स्टूडेंट्स को देखते हैं कुछ करते हुए, तो कॉलेज को नेग्लेक्ट करना एट द कॉस्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट I don't feel it's good. Is it good approach, or should I do some change? If there is any, please suggest. I don't know the context of it. आपकी कौन सी मिस्टेक करी थी? ओके, मिस्टेक आई थिंक इन previous few attempts, I think at least in one first और third attempt, उस समय मैं उतना ज़्यादा पीवाई एनालिसिस नहीं करता था, तो मुझे जो मैं कंटेंट पढ़ता था मुझे बहुत रेगुलरली याद रहता था, लेकिन पेपर में जाके कभी कभी चीज़ें बाउंसर लगती थी। तो वो मेरे लिए एक डिफिकल्ट पार्ट था, कि फिर बाद में मैंने अप्रोच लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में चेंज किया, कि मैं पीवाईक्यू को काफ़ी ज़्यादा फोकस करता था, और उसकी अगल-बगल की चीज़ें जो उसके रिलेवेंट चीज़ें, उसको फिर तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ता था। और मिस्टेक मतलब वही कि कई बार मेंस वगैरह में टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उससे डिफिकल्ट होता है, उससे ज़रूर बचना चाहिए। तो उसके लिए बिफोर हैंड आप अच्छे से पेपर लिखिए, और उसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर लिखिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Someone asked, sir, I want to join IFS, but I'm the only child of my parent. I think your parents will be really proud once you see the happiness on their face once you join IFS. मतलब मैं तो अपने पेरेंट्स को देख के बहुत खुश होता हूँ कि मतलब वो कितने ज़्यादा खुश हैं। तो आई डोंट थिंक आप सिंगल चाइल्ड है, या दैट कैन बी इंडिविजुअल प्रेफरेंस, बट दैट हैज़ नथिंग टू रिलेट विथ योर हैप्पीनेस एंड नॉट बीइंग हैप्पी। इंटरव्यू में सॉरी कैसे कहना चाहिए? तो मतलब एक तो होता है कि सॉरी सर आई डोंट नो, दैट यू कैन यूज। ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर आपको बहुत ही कम नॉलेज है, सॉरी सर इफ यू अलाउ मी देन आई कैन लेट यू नो वॉट एवर आई नो अबाउट दिस टॉपिक। एंड और भी जैसे कभी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन से दैट कि सर कैन यू प्लीज हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन बेटर। सो ये आप थोड़े बेसिक ऐसे स्ट्रेटजीज, एंड कभी कभार ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सॉरी माय अपॉलॉजीज सर, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस आंसर, दिस क्वेश्चन। सो ये कुछ तरीके हैं आप जिससे सॉरी बोल सकते हैं। हाउ टू इवेल्युएट, sir, I have done graduation in agriculture, so choosing it as an optional, please go for it. What should be my approach? Since agriculture was not my optional, I cannot comment much on it. But I think there are certain channels on Telegram where toppers have shared their agriculture optional topper, have shared their approach. So we can go through them. सितंबर से यूपीएससी स्टार्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल करिए, जब भी आपको टाइम मिले। टॉपर कॉपीज कैसे एनालाइज करना चाहिए? टॉपर एनालाइज मतलब मेरे हिसाब से तो टॉपर कॉपीज पढ़ने से आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि उनका कंटेंट काफी रिच होता है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया होता है। तो मैं काफी सारी चीजें वहां से नोट कर लेता था अपने लिए, कि इस टॉपिक पे कुछ आया तो मैं क्या इंट्रोडक्शन लूंगा, क्या कंक्लूजन रखूंगा। तो उससे एक होता है कि इंट्रो कंक्लूजन का कलेक्शन कर लीजिए आप टॉपर कॉपी से। बॉडी में से ही सिर्फ आप कुछ यूनिक एग्जाम्पल आपको लगता है वो आप नोट कर लीजिए। एक और खास चीज ये है कि टॉपर्स कॉपी में आप ये देखना कि जो टॉपर्स हैं, हाउ दे आर एबल टू राइट इवन आंसर ऑन द क्वेश्चन वेयर they would not have more than 10-20% of the content, still they are able to present their content well। तो आप वो देखिए कैसे वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो एक हेल्प करता है टॉपर कॉपी को पढ़ने के लिए।
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना चाहिए? आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, तो आपको यू हैव टू थिंक दैट आपका जो अप्रोच है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, लीगल टर्म्स पे है कि नहीं है। तो वो थोड़ा आपको एक अवेयरनेस होना चाहिए उस चीज़ों का। देन ओनली यू कैन लाइक आंसर देयर क्वेश्चंस सिचुएशनली बेटर। और थोड़ा बहुत आप मॉक इंटरव्यूज या फिर फ्रेंड्स के बीच में आप प्रैक्टिस कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। वैसे सिचुएशन में क्या, जैसे अभी कोई फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट में कोई कोई बॉडी मिलता है तो आप कोई पूछता है कि आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पुलिस से कांटेक्ट करना है। मतलब ये नहीं कि आप ही चले गए इन्वेस्टिगेशन करने। तो वो एक है कि आपको एक अवेयरनेस, और कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी अपन रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंट, तो ये एफआईआर लॉन्च हुई, इस एक्ट के थ्रू ये एक्शंस लिए गए, ये पेनल्टी लिया गया। तो उससे भी आपको एक मतलब एनरिच होता है आपका कंटेंट। आपने लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ा है? आई थिंक आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर 6-7 ईयर्स, तो मेरे पास अब काउंट नहीं है कि मैं लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ा है। बट आई थिंक 10-15 टाइम्स तो वैसे ही हो गया होगा। एंड अब तो रिसेंट टाइम में तो बस ऐसा होता है कि 2 दिन में आप लक्ष्मीकांत को बस पन्ने पलट लो, तो आपको धीरे धीरे याद आ जाता है कि कौन से पेज पे क्या कंटेंट था। आईआर आईआर से क्वेश्चन आते हैं। यस, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। तो मतलब आप वो कर सकते हो इजीली, मतलब कोई भी आप नोट्स उठाएंगे तो उससे आपको हो जाएगा। मतलब कोई भी आप करंट अफेयर्स का उठा लीजिए, मेन से 65 नहीं तो उठा लीजिए। और ये कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में आजकल बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको पहले से पता होता है। क्वेश्चन है, अपकमिंग 2026 नोटिफिकेशन अप्लाइड एंड चूज एग्जाम प्रेफरेंस ओनली आईएफएस नॉट चूज सीएसई, दैट अटेम्प्ट इज कंसिडर्ड इन सीएसई? नो। अगर आप ओनली आईएफएस करते हैं तो आपका आईएफएस का ही मतलब अटेम्प्ट काउंट होता है। डैफ कैसे बनाना चाहिए? डैफ कैसे बनाना चाहिए मतलब आपके पास जो डिटेल्स है उसको अच्छे से पेश करना है। हॉबीज पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। आपकी जो अगर कोई यूनिक हॉबी है तो दैट आपको जरूर लिखना चाहिए। उससे हेल्प मिलता है, क्योंकि काफी लोगों के सिमिलर हॉबीज होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जनरेट नहीं होते। तो अगर यूनिक हॉबी है तो लिखिए, अचीवमेंट है तो उसको लिखिए। और कई बार एक उसमें होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट करके डैफ में, तो वहां पे आप वो चीजें लिख सकते हो जिसके बारे में आपको काफी ज्यादा वेल रेड हो, या उस पे आपको बहुत इंटरेस्ट है। तो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप डाल सकते हो, तो उससे आप क्वेश्चंस अगर आते हैं उस डोमेन से तो आप उसको अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो वैसी चीजें भी लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मतलब आपको जो भी इंटरेस्ट का एरिया है उस पर आप लिखिए। अगर कोई स्पोर्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर कोई हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप आईएफएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, बट आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है, आप लिखिए उसको अच्छे से। आई थिंक और मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स और फ्यू क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सो एंड रेस्ट वी कैन like reach out or maybe connect some it at some other time as well. ऑप्शनल चॉइस कर लिए पर उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्या न्यू ऑप्शनल में स्विच कर लेने से आसार पर असर पड़ेगा? डिपेंड करता है कि नया ऑप्शनल में भी आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपके पास टाइम है, मतलब अब मिडवे चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि या तो एग्जिस्टिंग ऑप्शनल में क्या कमियां रह रही है उसको मैं दुरुस्त कर सकता हूँ कि नहीं। और आपको लगता है कि वो अब डुएबल नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही लूज कर गए, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन। बट वो भी जाके फिर 4 महीने बाद आपको नहीं लगना चाहिए कि वो वापस ट्रैप हो गए। तो पूरा ड्यू डिलीजेंस के साथ थोड़ा सा लोगों से डिस्कस कीजिए जो उस ऑप्शनल के लोग हैं जो आप लेना चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग है, और फिर आप प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर डिसीजन लीजिए। एनी सजेशन फॉर मेंस 2025 फॉर फर्स्ट अटेम्प्टर? फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए तो आई थिंक इट्स अ रियली बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप पूरा, अभी तो रिजल्ट्स आए भी नहीं है आई थिंक, बट
फुल एनर्जी के साथ अभी से आप मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए और रिवीजन करते रहिए, और मतलब वही आपका जो भी स्ट्रांग एरिया है उसको एकदम अच्छे से करना है मतलब। और बहुत ही कुछ कुछ लो हैंगिंग फ्रूट है, लाइक एसे वगैरह काफ़ी आपका स्कोरिंग हो सकता है अगर आपने थोड़ा एफर्ट डाला तो। उसके लिए कोट्स वगैरह की लिस्ट बना लीजिए अभी से, और उसको इंट्रोड्यूस कीजिए जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-4 ऐसे लिख लीजिए। एंड एथिक्स का पेपर भी थोड़ा सा स्कोरिंग होता है अगर आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं तो अगर किसी कोचिंग से गाइडिंग चाहिए तो कोचिंग के लीजिए, नहीं तो खुद से पढ़िए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट टॉपर की कॉपीज पढ़िए। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप कोई भी ईयर के टॉपर की कॉपीज को आप थोड़ा बार बार पढ़ते रहिए। पढ़ने में आधा घंटा लगता है एक टॉपर कॉपीज के 50 पन्नों को। तो उससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि हाउ पीपल आर अप्रोचिंग और उनका क्या अप्रोच है, और जो भी नया कुछ कंटेंट मिले आप उसको नोट कर लीजिए या अप्रोच को नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट अटेम्प्टर को तो काफ़ी, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मतलब 6 नंबर से मेंस मिक्स मिस हुआ था, बट आई थॉट आई परफॉर्म फेयरली बेटर इन ऐसे वगैरह, क्योंकि मतलब वही कि कोट और चीज़ों की कलेक्शन से उस समय अनुदीप दूरी शेट्टी सर के नोट्स थे ऐसे के, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिल गई थी। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे अगर 10 मार्कर है तो आपके पास स्कोप ही नहीं है 7 मिनट से ज़्यादा देने का, और आपका अगर 15 मार्कर है तो 9 to 10 मिनट्स। तो इन दैट वे आप अपने टाइम पे एकदम बहुत ही स्टिक रहने का ट्राई कीजिए, सो दैट आप मिस आउट नहीं करें। दो तभी भी मैनेजमेंट करने में इश्यू होता है टुवर्ड्स द एंड, कई बार होता है कि 5 मिनट बचा है और 10 मिनट बचा है आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो वो कुछ कर नहीं सकते, कई बार आपका क्वालिटी ऑफ आंसर्स ऊपर का बेटर होता है तो लास्ट में थोड़े कुछ क्वेश्चन सेक्रीफाइस होते हैं। बट देन उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप चूज कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, थोड़ा उसमें एक आध मिनट आगे पीछे हो गया तो अच्छा है, मतलब चलेगा। और बाकी जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसमें आपको वैसे भी ज्यादा लिख नहीं सकते, तो 2-3 मिनट लिखे तो भी आप 1-1.5 पेज का एक डिसेंट कंटेंट जितना भी आपको पता है वो लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, डू वी नीड कोचिंग फॉर ऑप्शनल? मेरे ख्याल से तो अगर ऑप्शनल टेक्निकल है तो ले लेने से बेटर है, आपका एटलीस्ट टाइम लर्निंग टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो कोई इसमें दो राय नहीं है, मतलब आप ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड हियर। अब समवन हैज आस्क्ड कि आई एम 10th क्लास स्टूडेंट, प्लीज डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। I complete economics, but still some term come in MCQ which I don't study in syllabus. तो इसका सिलेबस एक्चुअली डिफाइंड नहीं है इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस है, बट पीवाईक्यू से आप करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम एटलीस्ट रिपीटेड होती है। तो और कुछ नया कंटेंट मिला तो अच्छी बात है, आप उसमें कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्या टॉपिक है। आई थिंक ठीक है। इफ एनीवन हैव एनी लास्ट क्वेश्चंस वी कैन टेक, और एल्स वी कैन क्लोज द सेशन। Someone has asked, it's very important though, how to deal with mental health. So one thing is, I mean, for mental health, you also need to have good peace of mind. तो आप वही मतलब थोड़ा सा मतलब यू कैन गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स अराउंड इन बिंग अमंग द नेचर वगैरह, तो थोड़ा आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आपको कुछ भी अगर ऐसा रहता है कि एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, तो टॉक टू योर लव्ड वंस, डोंट बी शाय। आप खुल के बात कीजिए कि आपको क्या चीज़ें परेशान कर रही है, और तो डेफिनेटली वो लोग आपको सुनेंगे। तो जो आपके अच्छे बडीज हैं या पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनसे आप डेफिनेटली कीप इन टच। आप अपने अंदर प्रेशर को बिल्ड मत होने दीजिए, ओवर द टाइम प्रेशर को रिलीज कीजिए। अगर वो एग्जाम प्रेशर है तो थोड़ा बहुत रहता है, वो जायज़ है, कई बार आता है, बट उससे फिर आप मूव ऑन होके मतलब डोंट, आप उसके अंदर एकदम डीपली सबमर्ज मत हो जाए खुद की, मतलब प्रेशर शुड नॉट मतलब टेक ऑन यू, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मेन ये कि आप अपने तक बातों को मत रखिए, आप कुछ भी चीजें टेंस लग रहा है आप लोगों से डिस्कस कीजिए, और अगर कहीं गाइडेंस की कमी है तो कहीं गाइडेंस लीजिए। समन इज आस्क्ड आपके ऑप्शनल क्या थे, कितने मार्क्स है? आई थिंक मैं पब्लिश कर दूंगा, मैं अपनी मार्कशीट ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, बट आई विल पब्लिश इट। हाउ शुड माई आइडियल डे लुक लाइक, टाइम टेबल एंड थिंग्स टू इनकॉर्पोरेट इन वन डे? डिपेंड्स, अगर आपका स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है तो अगर आप यू आर कंफर्टेबल रीडिंग वन सब्जेक्ट इन अ डे, कीप रीडिंग। कई लोगों का होता है कि आफ्टर 3-4 आवर्स अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, तो भाई यू कैन टेक 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, कि मॉर्निंग सेशन लाइक सपोज 9 to 1 मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, देन आफ्टरनून में 2:30 या 3 से लेके शाम को 7 बजे तक कुछ पढ़ लिया, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थोड़े से लाइटर सब्जेक्ट्स लिए, जैसे एटलस उठा ली मैपिंग वगैरह के लिए, या जो भी आपको कंटेंट थोड़ा सिंपलर लगता है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ले सकते हैं। तो उस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट कितने दिन में पढ़ना है, कब तक खत्म करना है। Okay, guys. So thank you for attending the session. And if needed, I can have another session on other detailed strategy if you want to know. Thank you. Jai Hind.